Assalamu alaikum everyone. This is unit 1, real numbers. Let's start. Well, there are two types of numbers. We have real numbers and imaginary numbers. We will discuss imaginary numbers later on. Let's start with real numbers. Before we talk about real numbers, let's talk about natural numbers. You all must be familiar with natural numbers. Natural numbers start with 1, 2, 3 and they just go on. If we add 0 to the natural numbers, they become whole numbers. So we have 0, 1, 2, 3 and they go on, that are whole numbers. Natural numbers are denoted by capital N. Whole numbers are denoted by capital W. And whole numbers are a part of integers. Now what are integers? And we do not denote integers by I. Integers are denoted by Z. Integers are, you must be familiar with the number line. So we have 0 and we have 1, 2, 3, all the positive numbers. Numbers keep increasing towards right hand side, and we have negative numbers, -1, -2. As we move on towards the left hand side, the numbers keep decreasing. So 0 along with the positive numbers and negative numbers, they are all a part of integers. Integers are 0, positive and -1, positive and -2, and so on. Integers are a part of rational numbers. Now the question arises, what are rational numbers? Rational numbers are not denoted by R, as you might have guessed, but they are denoted by a capital Q. Now let's discuss about rational numbers. What are rational numbers? Well, rational numbers are those numbers which can be written in the form of fraction, numerator over denominator. Here numerator and denominator are a part of real numbers. Real numbers include all the numbers that we use in our daily lives. Natural numbers become whole numbers, they become integers, and all the integers, when they are written in the form of fraction, they are called rational numbers. So rational numbers can be written in the form of fraction, where numerator and denominator belong to or are elements of integers. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी उनको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं ये पार्ट होंगे इंटीजर्स का, जो हमें ऑलरेडी पता है. यानी इंटीजर्स को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, अब वो नेगेटिव भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड द सेकेंड कंडीशन इज द डिनोमिनेटर cannot be 0. So 0 is a rational number, and if we have 0 divided by 0, that is a math error. So we cannot divide any number by 0. So if we have a 1 and we divide that by 0, so as you can see over here we have math error. So the denominator of the rational number cannot be 0. ओके गाइज, लेट्स सम दिस अप. हमने यहाँ पे बात की नेचुरल नंबर्स की, फिर बात की होल नंबर्स की, फिर हमने बात की इंटीजर्स की. इंटीजर्स को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. सो एज आई वॉज टॉकिंग के रैशनल नंबर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. एक हमारे पास हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक हमारे पास हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. एज इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे? जिनमें हमारे पास डेसिमल नंबर के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/4. इफ वी डिवाइड 1 by 4, 1 divided by 4 is 0.5. Is 0.5, that is a terminating decimal number because we have a limited number of digits after the decimal. यानी decimal के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन फुल सॉल्व हो गया, ये चलता नहीं जा रहा, तो that is terminating. और अगर ये चलता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/3. if I divide 1 by 3, that is 0.3333. as you can see that the number is continuing and a same number
सेम डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.333, ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में वी हैव टू कैटेगरीज, इसमें ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर चलता जा रहा है, सो दैट इज रिकरिंग। द वर्ड रिकरिंग कम्स फ्रॉम अकर, जो चीज़ बार बार अकर होती है यानी रिकर होती है, बार बार होती है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। अब हमारे पास ये कोई एक डिजिट भी हो सकता है, जैसे एज वी कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास 3 है जो बार बार डिजिट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज 0.3 और इस पर हम बार लगा देंगे, तो दैट मीन्स कि 3 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास वी हैव 22/7, अगर हम 22/7 को सॉल्व करते हैं, हम इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 3.142857। एज यू कैन सी इसके बाद हमारे पास 1, 4 और वही नंबर ऑफ डिजिट्स दोबारा भी रिपीट हो रहे हैं। इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं यहाँ पर। So we have 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 पॉइंट लगा के यहाँ पे हमने 0 लिया था, फिर इसके बाद 7 4s are 28, 7 2s are 14, 7 8s are 56, 7 5s are 45, 7 7s are 49, and you can see we have a 1 over here. यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन वी विल हैव द सेम डिजिट्स, यानी ये सेम डिजिट्स हमारे पास रिपीट होंगे। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.142857, 142857 एंड डॉट डॉट डॉट, और वी कैन राइट इट लाइक दिस 3.142857 and we will put a bar over it. It means that this is the group of digits that will be repeated. तो हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है या हमारे पास कोई सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों कैटेगरीज हमारे पास किस में फॉल करेंगी, रिकरिंग की कैटेगरी में फॉल करेंगी। ऑल द रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। Okay guys, let's sum it up. We had natural numbers. If we add 0 to natural numbers, that becomes whole numbers, and whole numbers 0, all the positive numbers, and we add the negative numbers to that becomes integers. If we write the integers in the fraction form, they become rational numbers. That is what we have learned so far, and there are 2 types of rational numbers. One are terminating. We discussed the example of 1/4 that was equal to 0.25. It is terminating. And another thing you must know is if we have a number that is a perfect square, for example we have 4 that is equal to 2, that is also terminating. So these are the 2 examples that you should remember. If a number, if you divide that and it is terminating, that is going to be a rational number. And if there is a perfect square, that is also a rational number. Second thing that we discussed was non-terminating. जो कंटिन्यू होता है, यानी डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर्स चलते जाते हैं, उसमें हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस की थी। 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.3333 कंटिन्यू हो रहा है एक ही डिजिट। दूसरा हमने डिस्कस किया था 22/7, जिसमें हमारे पास हमने देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहा है। अगर हम 22 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो इसमें हमारे पास 3.142857 ये पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.3 और इस पे बार पुट कर दें। तो ये हमने सो फार डिस्कस किया है कि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास अगर रिकरिंग होता है, यानी कि हमारे पास कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो दैट इज रिकरिंग। तो अगर रिकरिंग है तो फिर ज़ाहिर है नॉन रिकरिंग भी होगा। तो नॉन रिकरिंग हमारे पास किस में फॉल करेगा, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में फॉल करेगा। और ये हमारे पास जो हमने पूरा डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1, देन वी ऐड 0 टू दैट बिकम होल नंबर, और होल नंबर में हमारे पास 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव को अगर हम ले लें तो फिर ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स हमारे पास रैशनल में चले जाते हैं, और रैशनल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज हैं, एक हमने रैशनल को डिस्कस किया जिसमें टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। तो एक यहाँ पे फॉल कर गया, और दूसरा हमारे पास रियल नंबर की सेकेंड
कैटेगरी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, बहुत कम नंबर्स आमतौर पे इसमें होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में हमारे पास इसमें नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हुए नहीं आएगा। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे पास पाई है, या हमारे पास जो है वो ई है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें, अगर हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो पाई की वैल्यू हमारे पास आई है 3.1415925654। अगर आप देखें तो इसमें कोई भी हमें रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही है, कोई खास पैटर्न नज़र आ रहा हो कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है या नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। या अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू लेते हैं, इस तरह से ई की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखें ई की वैल्यू हमारे पास आई है 23.14069263। तो इसमें भी हमारे पास कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो हमें नज़र आ रहा हो। तो एक तो इसमें ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे, और यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमारे पास पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। अगर हम 22/7 को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होता है, तो दिस इज अनडाउटेडली ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में तो फॉल करेगा, लेकिन ये रिकरिंग है, तो दैट्स वाई रिकरिंग हमारे पास आर फॉर रिकरिंग, आर फॉर नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल रैशनल नंबर्स में जाएगा। सारे रिकरिंग नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स में जाएंगे। और पाई अगर हम देखते हैं तो पाई की आपने वैल्यू देखी कैलकुलेटर पे कि उसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ रिकरिंग पे नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग भी है तो इसका मतलब है कि ये किस में चला जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर्स में चला जाएगा। तो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज कि नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल। दैट इज क्वाइट फनी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें हमें कोई डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं अपनी इस नॉलेज को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन 1, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे हमने पाई को डिस्कस किया था और हमने ई को डिस्कस किया था कि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये इरेशनल है। और इससे पहले कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर लें कि हमारे पास जितने भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जैसे यहाँ पे वी हैव 2, वी हैव 7, कोई भी ऐसा नंबर जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पास रैशनल में जाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 9 है तो दैट इज इक्वल टू 3, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर ऐसा आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने कॉपी कर लिए हैं। यहाँ पे पार्ट्स क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है, अगर आप देखेंगे तो शायद इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास 2.353535 दैट इज द नंबर। तो आपको लग ऐसे रहा होगा कि ये शायद हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो इसके ऊपर या तो बार होता 35 पे और ये एक ही टाइम लिखा होता इस तरीके से 2.35 इस पे बार है, दैट मीन्स कि इट इज़ 2.353535, या इसमें यहाँ डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे डॉट्स भी नहीं है, तो ये एक तरह से जैसे इल्यूजन होता है, आपको ज़रा धोखा देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि ये टर्मिनेटिंग है। तो वी नो कि कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर वो टर्मिनेट हो गया तो इफ़ इट इज़ टर्मिनेटिंग, तो सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर्स होते हैं। सही। इसके बाद हम नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे देखें देयर इज अ बार दैट शोज दैट इट इज 0.666, यानी इसका मतलब ये है। तो एज यू कैन सी कि ये नंबर चलता जा रहा है, आप इसको बार से पहचानो या 0.6666 से पहचानो, तो यानी ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम देखेंगे क्या ये रिकरिंग है, यानी इसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जी बिल्कुल, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिकरिंग है, यानी इसमें बार बार रिपीटेशन है, तो आर फॉर रिकरिंग, आर फॉर रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस नंबर को देखते हैं, नेक्स्ट नंबर को, इसमें भी हमारे पास डॉट 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 है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। अगेन हम इसको चेक करेंगे क्या ये हमारे पास रिकरिंग है, यानी इसमें कोई खास डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा, दैट इज इर्रेशनल नंबर। सारे नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं।
अच्छा, नाउ वी हैव √7। ये अभी डिस्कस किया था हमने कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, अगर कैलकुलेटर आप नहीं भी यूज़ करते और इसको डायरेक्ट भी आप पहचान सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और √7 को आप कैलकुलेटर पे करते हैं, यू कैन सी कि 2.645751311, कोई पैटर्न नहीं है, कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये हमारे पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज़ वाई इट इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ई है, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको कैलकुलेटर पे चेक करवाई थी कि ई में हमारे पास ई हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है और ऑल द नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद वी हैव पाई। पाई की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी कि पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती है, दैट्स वाई पाई इज इर्रेशनल नंबर। और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये 22/7 होगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है, तो दैट इज रिकरिंग, दैट्स वाई 22/7 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें मिस, ये क्या है, ये तो हमारे पास इसमें जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, +5 भी है। आप इस पे फोकस करें कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है तो ये ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा। इसको कॉन्जुगेट से या इसको जो है वो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे वी हैव √13, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। देन वी हैव 15/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 15/4 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, सो वी हैव 15/4, आप देख सकते हैं 3.75 ये ख़त्म हो गया है, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग, ऑल द टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डॉट के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे या जो है वो चलते नहीं जा रहे, ख़त्म हो गए, लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसके बाद हमारे पास वी हैव दिस। अच्छा, इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 - √2 और 2 + √2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मिस यहाँ पे आपने कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल में जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था कि 3 + √13, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सेम लिखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। ये कौन सा फॉर्मूला है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a - b और ये है हमारे पास a + b। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो इस पे फॉर्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा, ये बराबर होता है a² - b² के। गाइज, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b। So we will take the square of a, that is 2, and we will take the square of b, that is √2। रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो हमारे पास रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का स्क्वायर कर लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 2 इज 4 -2, दैट इज इक्वल टू 2। सो 2 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये जो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट्स में हमारे पास इस तरह से अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं कॉन्जुगेट्स की तो हमेशा रैशनल नंबर आता है, तो इसको और आगे जाके डिस्कस कर लेंगे तो आपको कॉन्जुगेट्स का आइडिया भी हो जाएगा। सो दिस इज आवर रैशनल नंबर।